Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes and interventions. ऑटिज्म और दीगर असाबी उर्स के बारे में आगाही, उनकी अलामात, वजूहात और उनका हल। So, Assalamu alaikum everyone, and a very good evening to all of you from Pakistan. So we are glad that people from different regions have joined us. This is Nadia Riaz here from Autism Without Borders. I am coordinator for the project, special educator and behavior therapist. With me, we have Dr. Azhar Rafiq as the project coordinator and consultant pediatrician. Today, we have touched a very important and thought-provoking topic, how to connect with autistic brain, which I think all parents, all therapists, all educators would love to listen about. तो हमारे साथ हम बहुत thankful हैं respected Dr. Anika Suhail के, who has joined us and who has given her precious time for this noble cause. मैं डॉक्टर अनीका का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाती चलूं. इनका माशाल्लाह इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है कि आई हैव टू look into my mobile to introduce her, mashallah. Dr. Anika is head of head of pediatrics department in Babda Teaching Hospital Complex. She is certified fellow and member of pediatrics. She is one of the best graduates of King Edward Medical College and served as associate professor in Central Park Medical College. Mashallah, Dr. Anika is global ABA consultant and trained herself in multiple interventions of autism from abroad. She is certified practitioner in floor time methodology. She did her RDI online professional and parent training series from India. She is trained in natural play therapy and graduate in autism assistive communication from USA. And she's also doing a great job by being a founder of Help Autism Pakistan, through which she is serving autism community, mashallah. And that is for helping and empowering and educating the autism community around the globe. She has recently did her board certification in lifestyle medicine physician exam, and she's member of Pakistan Society of Lifestyle Medicine. So this is a small introduction, I would say, of Dr. Anika. The rest we will love to listen from her. But firstly, I would request Dr. Azra Rafiq to say a few words about our project and to welcome Dr. Anika. Over to you, Dr. Azra. Thank you, Jazakallah, Nadia. Or with permission of Dr. Anika, can I take 5 minutes? It's your time. It's your time. So with your permission. Love to listen. I would love to listen. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiba. Allah Ta'ala हम सबको नफा देने वाला इल्म, कबूल होने वाला अमल और पाक रिज़्क़ दे. और इन अल्फाज के साथ जो है हम थोड़ा सा मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अपने प्रोजेक्ट का कराऊंगी. ये हम सबका मोटो है कि हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन. और this autism surveillance and management is a part of a preventive pediatric project. And what is preventive pediatric project? It is defined as the prevention of disease and promotion of physical, mental and social well-being of children. यानी बच्चों की जो है वो जिस्मानी, ज़हनी और उनका सोशल सेटअप, उसकी वेलबींग, उनको अच्छे तरीके से जो है हम जब तक काम नहीं करेंगे. और हमारा मकसद क्या है कि टू गेट द मैक्सिमम पोटेंशियल. अब इसमें जैसे हम सबको मालूम है कि मोस्टली फिजिकल काम तो बहुत किया जाता है, बट मेंटल हेल्थ पाकिस्तान में काफी निगलेक्टेड फील्ड है. तो वी आर ट्राइंग टू कवर दिस, है ना. और ज़ाहिर है कि सब टीम वर्क होता है, और जैसे जैसे हम कर रहे हैं हमें लोग भी इतने अच्छे मिलते जा रहे हैं. तो मेंटल हेल्थ चिल्ड्रन की जो क्या है कि मेंटल हेल्थ इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. Reaching developmental and emotional milestones, learning healthy social skills, how to cope with the problems, और पूरी सोसाइटी में, स्कूल में, घर में किस तरह से जो भी प्रॉब्लम उसको कैसे जो है वो ओवरकम करें. तो इसके लिए जो है हम जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है कि ब्रिजिंग द गैप. और कौन सा गैप? लैक ऑफ अवेयरनेस, फिर लैक ऑफ स्क्रीनिंग, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द रेफरल, फिर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द रिहेबिलिटेशन,
फिर लैक ऑफ प्रॉपर फॉलो अप, ये सारी चीजें। तो हमारी कोशिश है, और इसीलिए जो है इस तरह के प्लेटफॉर्म आई थिंक पहले नहीं होते थे, कि जिसमें डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन, पेरेंट्स, हेल्थ एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट, तो अब सब हम एक उसमें जो है कोशिश करते हैं। अगर हम इस पे नहीं करेंगे तो इट विल लीड टू द निग्लेक्टेड चाइल्ड, और हम सब चाह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर तवज्जो दी जाए। इसके लिए सोसाइटी को जो है, जो हमारे प्रोजेक्ट में हमने 2 में डिवाइड किया है, कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड चिल्ड्रन केयर गिवर। क्योंकि इवन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो डॉक्टर, पीडियाट्रिशियंस, उनको भी बाज़ दफा ऑटिज्म का नहीं पता होता कि उसकी कैसे स्क्रीनिंग करें, कैसे आगे चलें। इसी से टेक्नीशियन, हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, फिर चिल्ड्रन केयर गिवर्स में इतने डे केयर जगह जगह बने हुए हैं, लेकिन जो है उनको भी मालूम नहीं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स को, फिर मदर्स, फादर्स, अंकल, आंट, ये सारे लोग। तो इन हम एज अ कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर भी ये पेरेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑटिज्म सर्वेलेंस मैनेजमेंट इज अ वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट अंडर ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स। और इसके बस मेन पॉइंट्स क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ASD एंड इंटरवेंशन टू गेट द बेस्ट पोटेंशियल। तो इसमें जैसे आपको बताया मैंने कि ये अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं, फिर ट्रेनिंग फॉर ASD, स्क्रीनिंग के लिए मुख्तलिफ लोगों को हम करते हैं, और फिर रेफरल मैकेनिज्म के लिए ऑटिज्म डायरेक्टरी नादिया कोऑर्डिनेटर हैं जो बना रही हैं, उसको अपडेट कर रही हैं। और हमारी कोलैबोरेशन मुख्तलिफ जगहों से हुए हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए रेफरल, फॉलो अप, और ये हमारी कुछ कोलैबोरेशंस हैं। तो इसमें देखिए हमारी जो चिल्ड्रन डे पे भी जो थीम थी वो कि इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर मीन्स इन्वेस्टिंग इन आवर चिल्ड्रन। तो बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, ये हम सब का जो है वो टारगेट है, एंड व्हाट वी नीड टू इन्वेस्ट आवर टाइम, मनी, स्किल्स एंड डेडिकेशन। दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से है। तो अब मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर अनीका सुहेल को, और हम सब उनसे लर्निंग लेने के लिए, सीखने के लिए जो हम सब बेचैन हैं। जी डॉक्टर अनीका, बहुत मैं शुक्रिया। अपना ये स्टॉप शेयर आपकी करती हूँ। ये आपकी जरा नवाजी है, बल्कि चिराग तले अंधेरा वाली बात है। तो आप लोग खुद माशाल्लाह बहुत नॉलेजेबल हैं, बल्कि आई वुड सजेस्ट कि आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा एक्सटेम्पोरी में ज्यादा बात करूंगी, क्योंकि इट्स लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड किस्म का टॉपिक ही नहीं होगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू कनेक्ट विद ऑटिज्म। तो उसमें हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि मैंने इसको जब नादिया ने मुझसे टॉपिक की बात की कि और बाकायदा हमारे एक इंसिस्ट हुआ कि शी रियली वांटेड टू डिस्कस about the brain structure, the differences of the normal and autism brain. मैंने बल्कि 2-1 बार नादिया से बोला कि थोड़ा टॉपिक कुछ और रख लेते हैं, लेकिन नादिया was like curious about the sub theme and theme of the autistic brain, so that how could we connect to that changes जो पब्लिक को नहीं पता। और जब मैं इसको थोड़ा सा पढ़ रही थी आप लोगों को आज ही जो आप लोगों को बताने के लिए कुछ जरूरी चीजें, तो मुझे पता चला कि किस कदर ये हॉट टॉपिक था जो आप लोगों के माइंड्स में आया, और एक्चुअली ये हमारा बेसिक रूट टॉपिक था जिसने हमारी सबकी सब चीजों को डील करना था। अच्छा, अब हमने जब ये बात कर रहे हैं कि ऑटिज्म के ब्रेन की बात करने हम जा रहे हैं कि ऑटिज्म का ब्रेन आम ब्रेन से डिफरेंट कैसे है और क्यों है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि आप एक बिल्कुल नॉर्मल एक लम्हे के लिए सोचें कि आप एक ऑटिज्म के बच्चे को ज़हन में लेकर आए, और आप एक लम्हे के लिए सोचें कि कितने ज्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं, कितने ज्यादा लाइक बहुत सारे फेसबुक के पेजेस बने हुए हैं, बहुत सारी एप्स बनी हुई हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा एडवांसेस कर लिए हैं ऑटिज्म के प्रोजेक्ट में, ऑटिज्म की समहाउ नो में लोगों को इंफॉर्मेशन देने में। एक तरफ आपको स्पीच लैंग्वेज लोगों का ग्रुप नजर आता है, एक ग्रुप में आपको ओटी और सेंसरी की चीजें शेयर हो रही होती हैं, कहीं पे ABA की ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, इसी तरह कहीं पे प्ले एंड कनेक्ट पे बात हो रही होती है। तो आपको एक चीज तो नजर आती है कि ये ऑटिज्म की जब भी हम बात कर रहे हैं, हर बंदा फर्क फर्क ट्रीटमेंट्स, फर्क फर्क बातें कर रहा है, हर बंदा ये शो कर रहा है कि यही सब कुछ है, यानी इसमें कुछ ना कुछ तो है जो एक या इसकी सम नॉलेज होना माँ बाप के लिए, डॉक्टर्स के लिए जरूरी है। और हम देख रहे हैं, हम खुद भी उसमें हिस्सेदार हैं। कभी हम प्ले पे बात करते हैं, कभी ABA पे, कभी स्ट्रक्चर पे, कभी नेचर एनवायरनमेंट में, कभी सेंसरी पे, कभी OT में।
तो एक चीज तो तय है कि ऑटिज्म का जो हम आजकल सब लोग मैनेज करें, एक मल्टी डिसिप्लिनरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट को छेड़े। एक मल्टी मोडल ट्रीटमेंट से एक बात तो नजर आ रही है कि जिस बीमारी को, आई वोंट से दिस बीमारी, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर, जिस डिसऑर्डर को डील करने के लिए इतनी सारी इंटरवेंशंस मार्केट में आई हुई हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी टियोलॉजीज भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी। ब्रेन का शायद एक हिस्सा इन्वॉल्व नहीं होगा, कुछ ज्यादा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे, शायद बंचेस की फॉर्म में, या ब्रेन का कौन सी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो सिंपल नहीं है, दैट इज नॉट इजी टू मैनेज, एंड एट द सेम टाइम दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो उसमें ये है कि जब आप इस चीज को अब डील कर रहे होते हैं, तो एक और चीज अब आपने ऑब्जर्व की होगी कि जब भी आपने अपनी कॉमन लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि अगर एक बच्चे को जिसको ऑटिज्म डायग्नोसिस हो गया है और माँ बाप उसको किसी थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते हैं, तो मैं आपके साथ बिल्कुल रियलिटी में और नेचुरल बात इसलिए करूंगी कि जो एग्जिस्ट करती है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमने उसी को देखते लेते हुए हमने ऑटिज्म ब्रेन तक पहुंचना है। तो अभी मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने एक 17 साल की मेरी एक एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने माँ बाप को देखा, ट्रीटमेंट्स को देखा, लोगों को देखा। उसमें जब आप एक माँ बाप के किसी बच्चे का ऑटिज्म डायग्नोसिस होता है और उसकी थेरेपी शुरू होती है, तो हमें एक बहुत वैरायटी ऑफ लोगों की चीजें नजर आती हैं, एक्सप्रेशंस नजर आते हैं। आपको ये भी नजर आता है कि अगर थेरेपिस्ट के पास माँ बाप लेके जाए और अगर वो थेरेपिस्ट थोड़ा सा बच्चे के साथ कम्युनिकेशन पे बिलीव करता है, उसके साथ प्ले करता है, कनेक्ट करता है, थोड़ा खेलता कूदता है, तो माँ बाप एक इमेज लेके जाते हैं कि बहुत सारे माँ बाप आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे सेशन में तो कुछ भी नहीं हुआ, सारा वक्त तो खेलता ही रहा, उसने तो उस बच्चे के साथ कोई काम ही नहीं किया, और उसके साथ तो उसको बिठा ही नहीं सका, और ये तो कोई थेरेपिस्ट नहीं है, या तो शायद पैसे तबाह हो गए हैं। ऑन द ऑपोजिट एंड, अगर आप एक बच्चे को एक ऐसे थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं, ये भी आप ही देखते हैं, आप अपनी एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा देखते हैं कि आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं, सरकारी अस्पताल ले जाएं, आप प्राइवेट ले जाएं, आपको ऐसे थेरेपिस्ट भी बहुत ज्यादा मिलते हैं जो आपके बच्चे को जब आपके साथ सेशन लेंगे या आपको बाहर बिठा देंगे, या फिर आपके बच्चे को थोड़ा लॉक ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, और बच्चा उस एनवायरनमेंट में, चाहे वो फर्स्ट सेशन है चाहे वो सेकंड सेशन है, वो कोप नहीं करता, वो बहुत ज्यादा बिहेवियर थ्रो करेगा, लाइक स्केप बिहेवियर, मे बी एग्रेशन, मे बी टेंट्रम। और फिर माँ बाप की वही वाली बात सामने आती है कि ये तो बच्चे का रुला रुला के बुरा हाल कर दिया है, इसको तो सेशन ही नहीं लेने आता। कुछ माँ बाप के ख्याल में बाहर बिठा के हमें ट्रॉमा दिया जाता है, हमारे बच्चे को अंदर बिठा के रुलाया जाता है। अगर आप एक तीसरे थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जो एक ओटी सेंसरी का बंदा है, और वो आपके बच्चे के साथ कुछ मूवमेंट्स पे, कुछ जम्प्स पे, कुछ क्ले पे, कुछ प्लेडो पे, थेरेपिटीज पे, साइकिलिंग पे कुछ और काम शुरू होता है, उसके ख्याल में इसको रेगुलेट करना जरूरी है, ये इसका सेंसरी मोटर है, तो भी हमें पेरेंट्स का एक कॉमन इमेज सामने आता है, ये क्या इलाज है। उनके ख्याल में इलाज एकेडमिक्स है, उनके ख्याल में इलाज स्कूलिंग है, उनके ख्याल में इलाज सिर्फ स्पीच है, उनके ख्याल में इलाज एक वो चीज है जो उन्होंने अपने माइंडसेट में फिक्स की हुई है, वही इलाज है। और अगर हम इस सारी उनके ख्याल में ऑटिज्म जो है वो सिर्फ बोलने, वर्ड्स, नाउन्स और उस तक का ही नाम है। एक्चुअली ये सबके सब लोग, आप अगर इनको ऑब्जर्व करें, तो ये सब के सब लोग इंक्लूडिंग पेरेंट्स एंड इंक्लूडिंग थेरेपिस्ट अपनी अपनी जगह पर रॉन्ग नहीं है। माँ बाप की 50% माँ बाप वो हैं जिनकी बेसिक विश ये है कि उनके बच्चे बोलें, जल्दी कम्युनिकेट करें, जल्दी स्पीच फैलाएं, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। और 50% माँ बाप वो हैं जिनका बेसिक स्ट्रेस एकेडमिक, स्कूलिंग और ये बड़े होके क्या बनेंगे, ये सब उन चीजों पे। एक्चुअली जब आप इन बच्चों की स्कूलिंग भी शुरू कर देते हैं, जैसे पहली बात तो हमारे बच्चों को आमतौर पर स्कूलिंग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर इन बच्चों को स्कूलिंग अवेलेबल हो भी जाती है और बहुत सारे माइल्ड
जो है बच्चे स्वेरिटी के साथ उसमें दाखिल भी हो जाते हैं और स्पर्जर भी एडमिशन ले लेते हैं। उस सारी सिनेरियो में जब स्कूलिंग इनकी शुरू हो जाती है तो लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन में पता है क्या फेस होता है, एक स्कूल के अंदर फिर वही सिनेरियोज आना शुरू हो जाते हैं। जो बच्चे स्कूल जाने के काबिल हुए थे वो स्कूल में सस्टेन नहीं कर सक रहे, और जो बच्चे सस्टेन कर गए थे वो थोड़ी सी जब सीनियर क्लासेस में गए, थोड़ा उनको कॉम्प्लेक्सिटी आई उनके सब्जेक्ट्स की तरफ या उनकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ या इंटरेक्शन की तरफ, तो उनकी छुपी हुई बीमारी सामने आ गई। और ये मैंने एक नहीं बहुत सारे केसेस देखे, चाहे वो ग्रेड 7 था ग्रेड 6 था, उनकी छुपी हुई बीमारी सामने आ गई। उनको जो चीजें बचपन में कवर अप कर गए थे वही सामने आ गई, और जो नहीं थी वो भी आ गई। तो एक चीज है कि एक पीस ऑफ पजल मिसिंग है, और वो पीस ऑफ पजल जो मिसिंग है वो एक्चुअली वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे माइंडसेट के साथ जुड़ा हुआ है। और एक्चुअली वो पीस ऑफ पजल हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है, हमें अपने आप को थोड़ा सा ओपननेस की तरफ लेके जाना है। आप ये देखें कि हम में से कितने लोग हैं जो लाइक सेम रहना चाहते हैं। लाइक आप तो नहीं चाहती, मैं भी नहीं चाहती, हर बंदा वक्त के साथ ग्रो करता है। आपका भी दिल करता है कि आप भी तरक्की करें, आपका भी दिल करता है मैंने एक कोर्स कर लिया तो मैं दूसरा भी कर लूं, आपका भी दिल करता है मैंने एक पेशेंट देखा है मैं 10 देख लूं। ऐसे आपका भी दिल करता है मैं छोटे घर से बड़े घर में जाऊं, मैं ब्लू की बजाय मैं और अच्छे कपड़े पहनूं, या आपका भी दिल करता है मैं छोटी कार से बड़ी कार में जाऊं। लेकिन जब आप सेम नहीं रहना चाहती और आपके अंदर एक पोटेंशियल है टू ग्रो एंड यू सी दिस इज लाइफ, हम जैसे हैं हम अपने ऐसे ही हम जी सकते हैं, हम स्टैटिक होकर तो कोई लाइफ नहीं, स्टैटिक तो डेड पीपल होते। इसी तरह हम ऑटिज्म में हमने एक गलती कर रहे, और वो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम एक चीज देख रहे हैं, सीइंग इज बिलीविंग। आप देखें कि आपने एक चीज देख ली, आपने एक चीज सीख ली, आप उस पर बिलीव कर रहे हैं 100%, और अब आप चल पड़े। अब आपने ना उस सीइंग एंड बिलीविंग को आपने ये कर लिया, जैसे अगर आपको किसी ने सिखा दिया फर्स्ट ए देन बी एंड देन सी, तो अब आप फर्स्ट ए एंड देन बी और देन सी करेंगे। आप वही अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, आप वही एक्सपेक्ट करेंगे, उसी को डिक्टेट करेंगे, उसी का ऑर्डर देंगे, आप अपने जैसा लोगों को बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप एक सेमनेस पे आपने फिक्स कर दी। अब दूसरा बच्चा, दूसरा कैंडिडेट जिसको आपने सिखाया, अगर वो थोड़ा सा भी अपनी रूटीन से हिलता है या हटता है, या वो एक चीज आपके लेवल की परफेक्शन पे नहीं करता, उसकी प्रॉम्प्ट हिल जाती है या उसका रीइंफोर्सर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है या उसकी कॉन्सिक्वेंस थोड़ी सी खराब हो जाती, तो आपके ढेर सारे रूल्स आ जाते हैं आगे प्लस माइनस के। और क्या है, आप एक चीज पर स्टिक कर गए, आप सेमनेस की तरफ आ गए। आपने आप सब कुछ वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, आपने सीखा है, लेकिन क्या आपने एक लम्हे के लिए सोचा कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो क्या चाहता है, उस उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या वो इन सारी चीजों को, अगर वो इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा था और इन सारी चीजों में वो सोच रहा था और इन सारी चीजों में उसकी भी एक चॉइस थी या उसका भी एक माइंडसेट था, और वो समहाउ आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सका, वो नॉन वर्बल था या लाइक वो एक उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं थी, तो आप ये सोचें कि जिस चीज को आप अपनी सक्सेस समझ रहे हैं वो आपका फेलियर भी तो हो सकता है। हो सकता है वो रोट लर्नर बन जाए, हो सकता है उस वक्त तो वो अच्छा काम कर ले, वो आपके साथ 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाए, और जब आप चले जाएं उसके बाद वो फिर वही। जब आपके ख्याल में ये कॉमन कंप्लेंट है, माँ बाप की सबसे बड़ी कंप्लेंट ये है कि थेरेपिस्ट के पास बच्चा अच्छा काम कर लेता है और जैसे ही सेशन खत्म होता है वी आर एट द सेम ग्राउंड। तो अभी जब हमने ब्रेन की एक कनेक्शन के साथ बात करनी है, तो हमने कुछ चीजों को समझ के चलना है, तब हमें पता चलेगा कि आज के टॉपिक में हमने क्या चीज पाई और क्या खोई, क्या हमारा खोना हमारा पाना ही था। तो इसलिए ये एक स्टोरी को जो मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बिल्ड ऑन कर रही हूँ, दिस इज फॉर योर इजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग, कि आप जो कर रहे हैं आप उसको जरा वॉच करें कि इस सारे फिनोमेना में
आपकी ये जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जो सेंसिटिविटी है, या जो आपके सारे प्रोसीजर्स पे आप काम करें, सेमनेस पे, क्या वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए स्ट्रेस का बायस है? स्ट्रेस तो है, और स्ट्रेस आपको एक एंशियस ब्रेन की तरफ ले जाता है, और एंशियस ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ना हमारी हेल्थ के लिए, ना बच्चे की हेल्थ के लिए। तो उस वक्त आपने एक चीज सोचनी है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम ऑटिज्म की रियलिटी को अंडरस्टैंड करें, ऑटिज्म को प्रॉपर अंडरस्टैंड करें, और फिर उसके साथ हम अपने आप को बदलें, उसके साथ अपनी थेरेपीज को बदलें। तो यहाँ मैंने एक जो छोटी सी स्लाइड बनाई है, ये जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट की। तो ये मैंने इसलिए एक छोटी सी स्लाइड बनाई है कि ऑटिज्म की जो इटियोलॉजी है वो अभी तक कोई इतनी कंफर्म नहीं है, जेनेटिक्स भी एनवायरमेंटल भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एपिजेनेटिक्स है कि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे जेनेटिक स्विचेस होते हैं, जो हमारे कंट्रोल कर रहे होते हैं जीन एक्सप्रेशंस को, बाहर कैसे आना है, किस अमाउंट में आना है, और वो स्विचेस बटन अल्लाह ने लगाए हुए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी उनको इक्वली कंट्रोल करते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि पहले ऑटिज्म एक जेनेटिक, बाद में न्यूरो डेवलपमेंटल, फिर एक बिहेवियरल डिसऑर्डर, फिर एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें डाइट, ड्रग्स, लीक सिंड्रोम, और अब आपको पता है कि अब एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक चीज पर बात हो रही है कि एक्चुअली एक सेंसरी मोटर डिसऑर्डर है, जिसमें एक बच्चे को एप्रेक्सिक एलिमेंट है, यानी उसकी बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, जिसमें जिसमें उसकी बॉडी की मोटर मूवमेंट्स जो है ना उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं होती जैसे वो डिजायर करता है, या जैसे उसमें एबिलिटीज है। और इसके साथ साथ वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के साथ और कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स के साथ हमारे सामने आता है। और मोस्ट ऑफ एक्सक्यूज मी डॉक्टर अनीता, क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? जी बिल्कुल कर दें। ओके। और उसकी जो सॉरी मेरे इसमें है नहीं है वरना मैं खुद ही कर लेती हूँ। हाँ, आप बनिए, मैं कर, यू कंटिन्यू प्लीज। जी, और उसमें लाइक सॉरी मैं भूल गई हूँ मैं कहाँ थी। बहरहाल उसकी जो एपिजेनेटिक्स हैं वो उसको कंट्रोल कर रही हैं, और एनवायरनमेंट भी उसमें बहुत सारा पार्ट प्ले कर रही है। और अब ऑटिज्म को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेंसरी मोटर और एप्रेक्सिया को डिस्कस किया जा रहा है कि एक्चुअली ये बच्चे, इनको एक मोटर मूवमेंट और एक उसकी एक डिफॉल्ट है, एक उसका प्रॉब्लम है, और उनकी मूवमेंट ही उनकी कम्युनिकेशन है, जिसको हम बिहेवियर से लेबल कर रहे होते हैं, उसको मैनेज कर रहे होते हैं। एक्चुअली उनके ब्रेन की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम ऑटिस्टिक ब्रेन में दूसरे बच्चों से थोड़ी सी डिफरेंट है। आप इसको आगे लेके जा सकती हैं स्लाइड को, क्योंकि आप इसको नेक्स्ट ले जाएं। आप इसको नेक्स्ट स्लाइड कर दें। और मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी के ना, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा एक फोर ब्रेन है और एक हमारा हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन वो है जो हमारा, ये जो आपको ये नजर आती है स्कल या खोपड़ी है जिसमें हमारा ब्रेन है, ये हमारा बेसिकली फंक्शनिंग ब्रेन है, फोर ब्रेन है। और इसमें हमारे कॉर्टेक्स और मेडल्ला वगैरह होते हैं। और ये जो हमारा हाइंड ब्रेन है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया को उसने उस जगह को ऑक्यूपाई किया होता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स आप, ये जो कि इसका कंसर्न माँ बाप से नहीं है, और बेसिकली ये प्रोफेशनल्स को भी उस लेवल तक स्पीच लैंग्वेज वालों के अलावा उस तरह से नहीं है पता, लेकिन रफली मैं आपको ये बता देती हूँ कि ब्रेन के किसी एक स्ट्रक्चर में, या कोई ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिसमें कहा गया हो कि ब्रेन का कोई डिफाइंड एक कोई ऐसा एरिया या स्ट्रक्चर है जिसमें कोई ऑटिज्म से रिलेटेड कोई डेफिनेट कोई चीज है जो इसी एक स्ट्रक्चर में। बहुत सारे बच्चों में बहुत सारी चेंजेस देखी गई हैं। जैसे आपको यहाँ पर जो एक सेरिबेलम दिखाया गया, पिछला हमारे ब्रेन का हिस्सा है। इसी तरह एक हिप्पोकैम्पस है, अमिगडालाज है, फिर उसके बाद आपकी कॉर्पस कैलोजम है, कॉर्टेक्स है। आप इसको नेक्स्ट स्लाइड कर दें।
कॉर्टेक्स ये बड़ा सा ब्रेन का जो है, जो हमारा आपको हिप्पोकैम्पस एक ऐसा एरिया है जो हमारी मेमोरीज और लाइक स्टोर करता है, फॉर्म करता है मेमोरीज को, ये ऑटिस्टिक्स में बड़ा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। एक और एरिया है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा हमारा एक एरिया है अमिगडालास, वो भी आम ऑटिस्टिक बच्चों में दूसरे बच्चों के निस्बत थोड़ा छोटे साइज का होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह सेरिबेलम एक ऐसा है कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में, उसमें ब्रेन टिश्यू की मिकदार कम पाई गई है, और सेरिबेलम हमारा वो हिस्सा है जो हमारी मूवमेंट के साथ, हमारी कोऑर्डिनेशन के साथ, हमारे बैलेंस के साथ, और समटाइम्स हमारी कॉग्निशन और सोशल इंटरेक्शन के साथ भी रिलेट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा जो हमारा कॉर्टेक्स है ना, ये हमारा वो एरिया है जहाँ हमारे बहुत सारे, हमारे समझे सारे न्यूरॉन्स एक लाइक बंचेस की फॉर्म में, हमारे सारे न्यूरॉन्स हमारे कॉर्टेक्स में पड़ते हैं। जो हमारा फोर ब्रेन हमारा कॉर्टेक्स है, यहाँ से सारा ट्रैक्स ओरिजिनेट कर रहे हैं और उसके बाद ये हमारी बॉडी में पेरिफेरीज में लेके जा रहे हैं। और मुख्तलिफ जो ऑटिज्म के बच्चों में जो न्यूरॉन्स की वायरिंग है, somehow अनफॉर्चुनेटली जो मोटर कॉर्टेक्स का एरिया है वहाँ पे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, जैसे हमारे और आपके ब्रेन में। एक तो वहाँ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा है, ऊपर से वो स्क्रैम्बल्ड है, और वो लाइक इनके एक जैसे वो कहते हैं पंजाबी में गुंजल पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, बहुत ज्यादा उनकी लाइक वो स्ट्रेट वायरिंग नहीं है, और मोटर कॉर्टेक्स में उनके बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट के इश्यूज, उनकी लाइक बैलेंस के इश्यूज और ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा ये भी देखा गया कि ऑटिज्म के बच्चों के अनयूजुअली उनकी जो ब्रेन ग्रोथ है शुरू में थोड़ी फास्ट होती है आम बच्चों की निस्बत, और सेकेंड ईयर में थोड़ी पीक पे आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। और कुछ बच्चों में देखा गया है कि जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं उनके शुरू से उनके सिर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि वो थोड़ा सा उनकी ब्रेन ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा होती है। बाद में जाके इनके ब्रेन्स आम ब्रेन्स की निस्बत प्रीमेच्योरली श्रिंक कर जाते हैं। और कुछ बच्चों में CSF जो होता है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये जो ब्रेन के गिर्द सराउंड करता है, ये भी थोड़ा एक्सेस अमाउंट में देखा गया है, और बहुत सारे बच्चों में हमने इसको फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट स्लाइड। एक्चुअली ये कॉर्पस कैलोजम एक ऐसी चीज है जो ब्रेन के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में यूनाइट करती है, और जब ये कॉर्पस कैलोजम के बहुत सारे उसमें देखे गए हैं, बहुत सारी फाइंडिंग्स देखी गई हैं, और जो ब्रेन की जो कनेक्टिविटी थ्योरीज है वो इसी वजह से आई हैं कि कॉर्पस कैलोजम जो दोनों को यूनाइट कर रहा था न्यूरॉन्स को, वहाँ कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह ब्रेन के जो ऑटिस्टिक बच्चे और बच्चियां हैं उनमें सेक्स डिफरेंसेस भी देखे गए हैं, जो लाइक बॉयज और गर्ल्स में थोड़े से ज्यादा हैं, जिसकी वजह से बॉयज में ये ज्यादा है, गर्ल्स में ज्यादा, और कुछ उनकी ट्रेड्स और मैनिफेस्टेशंस हैं जो उनकी ब्रेन स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जिसमें उनकी कुछ ऐसी ऑड बिहेवियर्स जो गर्ल्स में ज्यादा हैं, ये आप इंटरनेट से ढूंढेंगे आपको बड़े आसानी से भी मिल जाएंगे। तो मकसद ये है कि ब्रेन स्ट्रक्चर को जब हम ये थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, तो हमने ये 2-3 चीजें देखनी होती है कि क्या ब्रेन स्ट्रक्चर की थोड़ी सी डिफॉर्मिटीज पता होने से हमें क्या फायदा होगा। एक, अगर किसी में डॉक्यूमेंट हो जाए और साथ ट्रेड्स भी हो, तो फिर प्रोग्नोसिस उसकी सिविरिटी बताने में सहूलत हो जाती है, और स्ट्रक्चरल बायोमार्कर्स होते हैं जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले लोगों के लिए क्या उसको फीडबैक देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आगे ले जाएं। अब मैं आपको दोबारा टॉपिक पे वापस आऊंगी, वो ये कि आपने कनेक्ट कैसे करना है एक ऑटिस्टिक ब्रेन के साथ। आप इसको भी नेक्स्ट स्लाइड कर दें। इसको अभी मैंने आपको बताया कि सेंसरी मोटर आपको ये पता चल गया कि एक्चुअली मूवमेंट का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं कि जब हम अपने अभी कनेक्ट करना है ऑटिज्म के ब्रेन के साथ, तो उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप एक चीज समझें कि जब भी हम कनेक्ट करने जा रहे हैं तो हमने एक चीज और असेस करनी है, वो उनकी इमोशनल डेवलपमेंट है। उसके टूल्स होते हैं, ये जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन है, इसमें हमने सीखा है कि अगर एक आप 6 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स होते हैं जिसमें हम बच्चे के ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम
ना सिर्फ बच्चे को रेगुलेट करते हैं बल्कि खुद भी को रेगुलेट होते हैं और एक 2 वे पर्पसफुल कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं और ग्रेजुअली वो कॉम्प्लेक्सिटी और फिर अंडरस्टैंडिंग ऑल इमोशनल स्टेजेस आती है। नेक्स्ट स्लाइड। चले, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, यहीं से हम शुरू करेंगे और इसमें हम आई मे बी रैंडम, लेकिन मकसद आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देना। चले, अभी हम ब्रेन से ही कनेक्शन से बात शुरू करते हैं। आपने एक चीज देखी कि अभी मेरी आपसे बात हुई कि ब्रेन में आपने इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और इतनी सारी लाइक सेंसिटिविटीज देख ली, बहुत सारे एरियाज इन्वॉल्व हैं जो कोऑर्डिनेशन के साथ, मोटर के साथ, एप्रेक्सिया के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, बैलेंस के साथ, कॉग्निशन के साथ, बहुत सारा कुछ रिलेटेड है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आप आज से वो आप घर मैसेज लेकर जाएंगे वो ये कि जो ब्रेन का फोर ब्रेन है, ये जो हमारा ये ब्रेन है, ये हमारा हेल्दी ब्रेन, और इसके मोटर कॉर्टेक्स में थोड़ी सी वायरिंग जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। सेकेंडली, हमने इन बच्चों को जब कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को आपने कहा कि आप चेयर पर बैठ जाएं, तो ये भी इंफॉर्मेशन है। अगर आप कहते हैं मेरे पास आओ, कम हियर, ये भी इंफॉर्मेशन है। अगर आप पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो ये भी इंफॉर्मेशन है। you should make sure and you should be like confident कि इन बच्चों की सुनने का प्रॉब्लम नहीं है until unless कि वो डॉक्यूमेंटेड कोई इनकी पैथोलॉजी है, वो एक अलग बात है, लेकिन इनको सुनने का प्रॉब्लम नहीं है। ये इंफॉर्मेशन इनके कानों से ये सुनते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट इंफॉर्मेशन इनके ब्रेन में इनके स्पीच एरिया पे जाती है और बिल्कुल सही मैसेज लेके जाती है जो आपने ट्रांसमिट किया। यही इंफॉर्मेशन स्पीच एरिया 2 तक जाती है जहाँ पे इसका आंसर बिल्ड ऑन हो रहा होता है, जो आपने कहा उसको आगे, उसको जैसे आपने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसका आंसर बिल्ड हो रहा होता है कि आपका नाम ये है या आप बताएं मेरा नाम ये है। ये लैंग्वेज का पार्ट, लैंग्वेज ब्रेन में वो उसके लैंग्वेज का पार्ट बिल्कुल ठीक था, उसने आंसर बिल्ड ऑन कर लिया। अब अल्लाह का एक निज़ाम है, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है और हम उस इंफॉर्मेशन का लोगों को बताते हैं कि हाउ वी रिएक्ट और हाउ वी लाइक अटेन योर इंफॉर्मेशन, हमने रिस्पॉन्स देना है। दैट रिस्पॉन्स इज थ्रू मोटर। जैसे आप किसी को कहें कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगी मेरा नाम डॉक्टर अनिका है। तो आई यूज्ड माय मसल्स, ओरल मोटर मसल्स, टंग मसल्स, तो ये इससे मैंने अपनी मोटर एक्टिविटी को की है, तो मोटर मसल्स यूज किए। फर्ज करें मैं बोल नहीं सकती, मुझे कोई बोलने के कोई मसल्स का प्रॉब्लम है या मैं मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं एक साइन लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दूंगी। फिर भी मैं अपने हाथ पैर हिला रही हूँ, अपनी उंगलियां हिला रही हूँ, तो मैं कुछ तो मोटर एक्टिविटी कर रही हूँ ना। अगर मैं ये भी नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली, तो मैं राइटिंग कर लूंगी। अगर मैं राइटिंग पे भी बता नहीं सकती तो मैं टाइप राइटिंग कर दूंगी। अगर मैं टाइप नहीं कर सकती तो मैं टच करके कोई चीज बता दूंगी। कहने का मकसद ये है कि मैं कुछ ना कुछ मोटर मूवमेंट्स कर रही हूँ आप तक अपना आंसर पहुंचाने के। और जब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई, हमारे कान ठीक थे, हमारी आंखें ठीक थी, हमने बिल्कुल सही उसको परसीव किया, वो ब्रेन के एक सेंटर में गई स्पीच के और उसने जाके वहां पे पेस्ट किया। फिर उसका आंसर बिल्ड ऑन हुआ एक और एरिया में स्पीच के, और अब उस आंसर ने बाहर आना था थ्रू सम मोटर एक्टिविटी, और वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स में गई जो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पड़ा हुआ है, मोटर एरिया ब्रेन का। वहां पर जाकर बेसिक प्रॉब्लम है एक ऑटिज्म ब्रेन में और एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन में। ऑटिज्म ब्रेन में जो न्यूरोटिपिकल है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूरॉन्स है, इधर इंफॉर्मेशन आई सिराते मुस्तकीम की तरह आगे सीधी गई बाहर आ गई, हाँ जी मेरा नाम ये है। यहाँ पर जो मोटर कॉर्टेक्स है वहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, हमारे से भी ज्यादा, मिलियंस एंड बिलियंस में हमसे ज्यादा, और वो सब के सब स्क्रैम्बल्ड है। ऐसे उनकी गुंजले बनी हुई हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना गुंजल बने हुए। वो इंफॉर्मेशन जो सुनी सही थी, प्रोसेस सही हुई, जिसका आंसर ठीक था,
वो यहाँ पर जब आई तो वो गुम हो गई है वो। अब वो कैसे बाहर आएगी? उसके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड वो न्यूरॉन्स नहीं है जहां से उसके बाहर आना था, एक्सप्रेस होना था। आप एक बच्चे को कहते हैं कि चेयर पे बैठ जाओ, वो चेयर के ऊपर चढ़ जाता है। आप किसी को कहते हैं कि खड़े हो जाओ तो वो भागना शुरू कर देता है। आप उसको कहते हैं कि पेंसिल शार्प करो तो वो पेंसिल और रेजर पकड़ के यूं यूं शुरू कर देता है। आप उसको कहते हैं सामने आओ तो वो रोना शुरू कर देता है। कहने का मकसद ये है कि आप जो देख रहे हैं वो एक्चुअली उसकी बॉडी है। आप समझ रहे हैं? आप उसका ब्रेन नहीं देख रहे, आप उसकी बॉडी देख रहे हैं। वो बॉडी आपको कुछ और चीजें करके दिखा रही है। जो जवाब उसने बोलकर देना था वहां वो मटरिंग शुरू हो गया, जहां पर उसने आप तक पहुंचना था वहां वो फ्लैपिंग शुरू हो गया। हम क्या करें? हमने ऑटिज्म के डायग्नोस्टिक टूल के लिए लेबल्स बना लिए हैं, ये फ्लैपिंग होगी, ये होगा, रेपिटेटिव होगा, बात नहीं सुनेगा, सोशली में इतने लेवल होगा, तो जी माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर है। हमने बॉडी को देखकर बहुत कुछ किया। हमने बॉडी को देख के डायग्नोसिस बनाए हैं, बॉडी को देख के बिहेवियर्स बनाए हैं, बॉडी को देख के एबीए का सिस्टम बनाया है, बॉडी को देख के हमने ओटी सेंसरी वाले जंप इन कर गए, बॉडी को देख के सब कुछ कर। क्या कभी किसी ने सोचा कि एक्चुअली इसका ब्रेन बॉडी डिस्कनेक्ट था? एक्चुअली इसके ब्रेन की आखिरी वाला जो हिस्सा था वो इसके बस में नहीं था। और इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसको समझ ही नहीं थी। हमने तो अभी पढ़ा कि ना इसको सुनने का प्रॉब्लम है, ना इसको अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। इसने तो लैंग्वेज में आंसर भी अच्छा जनरेट कर लिया था, लेकिन बाहर आते हुए जो नजर आया उसने हमारा सब कुछ ही बदल दिया। हमारा देखने का अंदाज, हमारा सोचने का अंदाज, हमारा करने का अंदाज, हमारा सब कुछ। फिर हमने अपना माइंडसेट भी वही बना लिया और हम जगह जगह फिरते हैं। हर जगह पे हम वही चीजें फेस कर रहे हैं जो मैंने आपको बहुत शुरू में बताई थी। अब मसला ये है कि जब इसको आप एक बच्चे को, जब उसको इंफॉर्मेशन ठीक थी और अल्लाह का एक निज़ाम है, 15 से 45 सेकंड लगते हैं एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट होने में और बाहर आने में। और इस बेचारे बच्चे को जब एक इंफॉर्मेशन चली गई और हमने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, हमें लगता है वो सुनते ही नहीं है और हमें लगता है वो समझते ही नहीं है और हमें ये भी लगता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो हम बार बार बोली जाते, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पकड़ के बैठा, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो क्या होता है कि बेचारा तो पहली प्रॉब्लम में इतने न्यूरॉन्स उस जगह पे वो स्क्रैम्बल्ड हुए, वो फिर एक बम्बारमेंट आना शुरू होती है पीछे से, वो और बेचारा क्राइसिस में जाना शुरू होता है। कभी आपने देखा कि इन बच्चों को, आपने रूटीन लाइफ में देखा होगा कि इन बच्चों को माँ बाप, जगह जगह लिखा हुआ है, पोस्टर्स बनते हैं, दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट, दे आर वेरी सेंसिटिव, प्लीज बी केयरफुल व्हाइल दे पीपल आर सिटिंग नियर यू। एक्चुअली बात सिर्फ ये है कि ये इनका इतना ऑब्जर्वेंट होना, माँ बाप से, आप किसी भी माँ बाप से पूछे, वो आपको एक बार जरूर एक फर्स्ट इंटरव्यू में कह देंगे इसको समझ सारी है। तो वो जो समझ सारी है वो ये वाला पार्ट था, अंडरस्टैंडिंग। तो उसको ठीक थी, एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम था, एप्रेक्सिया का इशू था, मोटर डेफिसिट था, लैंग्वेज का नहीं स्पीच का ज्यादा था। और अनफॉर्चुनेटली इतने सारे ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व होने की वजह से उसको थोड़ा बैलेंस का इशू था, उसको थोड़ा सा बॉडी की मूवमेंट जिस तरह की वो डिजायर करता था या उसमें एबिलिटीज थी उस तरह से सामने नहीं आ रही थी। उसकी कम्युनिकेशन ही बेचारे की, उसकी मूवमेंट्स थी, और हम लोग उनको बिहेवियर समझ के लेबल करना शुरू हो गए और हम बिहेवियर ही मैनेज करते हैं और फिर करी जाते हैं लॉग ब्लॉग करके। एक्चुअली वो बच्चा आपको अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेट नहीं कर सका कि उसके अंदर क्या चल रहा था, उसके दिल में क्या था, वो क्या चाहता है। हम जो चाहते हैं वो तो करा ही लेंगे, क्या यही सक्सेस है? ये सक्सेस नहीं है, ये एक्चुअली हमारा फेलियर है। आप ये देखें कि आप जब स्कूल्स में जाते हैं और आप एक लाइक स्कूल में दाखिला होता है, हमारा रिजल्ट्स वगैरह हमारे आते हैं, इतना खौफ हमें होता है कि फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, और फेल होने से भी हम डरते हैं। एक्चुअली वी लर्न बाय मिस्टेक्स, और कभी कभी आपकी शॉर्ट फेलियर्स आपकी बिगर सक्सेसेस की तरफ है। अगर आप उसी को ज़हन में रखें कि अगर आपने एक इलाज सीख लिया एबीए का और आप एक बीसीबीए बन गए,
लेकिन आपने अपने आप को सेमनेस पे तो ना आए ना। मैं आपको अपनी मिसाल सबसे पहले दूंगी, और मैंने जो लोग मेरे उस्ताद थे, फॉरनर्स भी, और मुझे बहुत जिंदगी में अच्छे लोग मिले, अच्छे उस्ताद मिले, और मेरे मेंटोर्स बहुत अच्छे मुझे मिले। आई एम वेरी ब्लेस्ड। अब मैं अपनी मिसाल इसलिए दूंगी कि मुझे जब वो लोग अपनी मिसालें दे रहे थे तो मुझे लगा कि मेरी भी यही जिंदगी। अब जब मैंने अपने बेटे के साथ शुरू किया तो मैं भी यही थी जैसे आप सब लोग इस फाइट बैक कर रहे। आपको पता है, जब हम सबसे पहली जो चीज सीखते हैं वो यही सीखते हैं जब हम डायग्नोसिस होता है कि 25 से 40 घंटे आपने उस पर एक वीक में पढ़ाना है। 25 से 40 वीक एबीए का इलाज है। आप एक चीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। क्या ये ह्यूमैनिटी है? क्या ये एक अंडरस्टैंडिंग है? क्या ये एक प्रॉपर सोशल अंडरस्टैंडिंग है उन बच्चों की? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से एक्चुअली हमने जो सीखा है और जो हम एक सेम उस पे आगे उस पे वो हम करके ही रहेंगे। ठीक है, और उसके लिए शायद नहीं 50% से ज्यादा आप बच्चे इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। आप उनके डोर्स लॉक कर दे उनके रूम्स के, उनको आप सारा दिन टीचर पढ़ाते रहे, उनको उठा के टीचर्स के पास भी ले जाए, वो कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। कुछ बच्चों पे ये चल भी जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं आती है आप में। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को समझाएं कि ऑटिज्म की रियलिटी और सब्जेक्ट क्या है। अंडरस्टैंड करें सब्जेक्ट को। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बिलीव करना है कि मेरे बच्चे में अल्लाह ताला ने वो कॉम्पिटेंसी दी हुई है। उसको अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं है। अगर मैं उसके साथ अपना ट्रस्ट का बॉन्ड बिल्ड डाउन करूंगी एक ऐसी एनवायरनमेंट में जो ह्यूमैनिटी पे बेस करती है, इमोशनल रिलेशनशिप पे बेस करती है, ट्रस्ट पे बिल्ड ऑन करती है, तो क्या वजह है कि वो बच्चा आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा? क्या वजह है कि वो सामने नहीं आएगा? इफ यू आर नॉट पैनिक and if you are confident of your child competence level and you show your endurance, believe you me, your child is definitely going to show you lot of results. Secondly, जो मैंने अभी बात की ओपननेस पे, ओपननेस मैंने अभी बात की कि अपने आप को हमने ऐसे बदलना है कि मैंने भी एबीए से इलाज शुरू किया और मैंने एबीए के इतने कोर्सेज किए हैं कि मैं शायद 15 साल एबीए पे कोर्सेज करती हूँ। एक जगह से कर लिया, फिर दूसरी जगह से, फिर तीसरी जगह से, कोई चीज छोड़ी नहीं। टीच का प्रोग्राम हो गया, पैक्स का हो गया, फ्लोर टाइम हो गया। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जब हम कहते हैं कि अभी फर्स्ट ए देन बी एंड देन सी, तो आपके ख्याल में जिंदगी यही, आप जिंदगी की तरफ आए? जिंदगी ऐसी नहीं है। जिंदगी तो बहुत मैसी है। जिंदगी तो इतनी ज्यादा मैसी है कि आप एक बच्चे को सेशन से उठाते हैं तो आपको लग समझ आती है। इतना शदीद मैसी सिचुएशन घर में है, लोग गुजर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग जा रहे हैं। आप समझ रही है ना कि लाइफ में रियलिटी में रहना थोड़ा मैसी है। इतना रोटिक, इतना रोबोटिक और इतना फिक्स्ड नहीं है। तो आप जब इसको लेकर चलते हैं तो, और आप एक डिक्टेटर की तरह आप उसके साथ चलते हैं, आप बहुत सारे काम डिस्क्रीट ट्रायल से करा सकते हैं, उसमें सक्सेस भी हो जाती है। लेकिन उसी को आप थोड़ा मोल्ड कर लें, अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज कर लें, उसको आप ज्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट में ले आए। आप किस चीज से डरते हैं? आप फेलियर से डरते हैं। हालांकि हमने अपनी जिंदगी में सीखा है कि आप हर चीज एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। चोट खा के आपको पता चलता है कि यहाँ से नहीं गुजरना, ये स्लिपरी वाली जगह है। तो आप अब भी फेलियर से ना डरे, एक्सपेरिमेंट करने से ना डरे, अपने आप को ज्यादा डायनामिक स्टेज पर लेकर आए। और देखें, अगर मैंने अपने बेटे के लिए अपने आप को थोड़ा सा वक्त के साथ साथ में मोल्ड करती रही, तो मेरे अंदर वो चीज थी जिसको मैं अब लेट, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ। और मुझे होता है कि काश ये चीज मुझे 15 साल पहले पता चल जाती। इसलिए मेरा दिल करता है मैं हर पेरेंट को बताऊं कि मैंने क्या मिरेकलसली चीजें देखी है। तो मैं, आप सब लोग देखें, वहां से फिर आप आगे बढ़े। तो मैंने एक जमाना था सनराइज अमेरिका जाके तो नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन जरूर किया, किताबें जरूर पढ़ी। वहां पे मैंने देखा कि वो ज्वाइनिंग करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं, प्ले करते हैं, पेरेंट बेस्ड थेरेपी है। ज्वाइनिंग बहुत फन है, बहुत थक जाता है बंदा।
लेकिन एक्चुअली वो उसकी वर्ल्ड में जाना चाहते थे, जो बच्चे की एक वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली आप उसकी सिर्फ ब्रेन के उस स्ट्रक्चर को ही समझ लें कि बीमारी कहाँ पर है, तो आपको उसके अंदर जाने की क्या जरूरत है। एक्चुअली तो हम यही चाहते हैं ना कि वो थोड़ा रेगुलेट हो जाए और आप कम्युनिकेशन और नेचुरल अंडरस्टैंडिंग की तरफ चले जाएं। इसके बाद आप देखें कि अगली आ गई फ्लोट टाइम मेथोडोलॉजी। ये एक चाइल्ड बेस्ड प्रोग्राम था, बच्चे की लीड लेकर हमने काम करना था। फिर देखें ना, अब चेंजेस आ रही हैं कि अच्छा, बच्चे के लीड वाले प्रोग्राम थोड़े ज्यादा काबू आना शुरू हो गए। फिर जी रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन, इतना महंगा प्रोग्राम, उसको सीखना चाहे ऑनलाइन, उसको आगे करना, वो भी इन्हीं सारी चीजों पे बेस कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग पे। उसके बाद अब फिर ओटी, सेंसरी सेंसरी मोटर, फिर कम्युनिकेशन फ्लरिश, ये सारी चीजें ये कर करके एक्चुअली मैंने अपने आप का माइंड सेट चेंज किया। मैंने अपने ब्रेन को ओपन रखा और अपने आप को उस चीज पर लाई कि वी लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। और आपको स्टैटिक नहीं होना चाहिए, अपने आप को बदलें, डोंट गेट सेम। आप किसी ने कह दिया आपको कि 25 से 45 है, तो आप वो जो आपको मैंने फर्स्ट बात की थी ना कि हम कॉमनली ये करें, सीइंग इज बिलीविंग। एक्चुअली आप ये करें कि सीइंग बाय बिलीविंग, आप बिलीव करें किसी एक चीज पर। और वो सबसे बड़ी चीज क्या बिलीव करने की, लुक एट योर चाइल्ड। वो आपका बच्चा किसी और का नहीं है, माँ से ज्यादा उसको कोई नहीं समझ सकता। उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी क्या इस वक्त इमोशंस है, माँ से ज्यादा मिशन के साथ कोई चलता भी नहीं। तो इसलिए आप बच्चे को अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें। आगे हम बात करें तो वो आ जाती है कि ब्रेन बॉडी मैकेनिक्स मैंने आपके साथ शेयर की, बैलेंस। अब आता है कि बैलेंस, बैलेंस एवरीवेयर, बैलेंस इन योर रिलेशनशिप्स। आप ये देखें, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि हम दुनिया में किसी के साथ रिश्ते नाते बनाते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, दोस्तियां करते हैं। आपने कभी देखा है कि हम बड़ी बैलेंस सी रिलेशनशिप रखते हैं। जरा सी किसी ने हमारा दिल ना दुखाया, ऊंच नीच कर दी, कि थोड़ा सा हमारे साथ कमी बेशी होगी, हम महसूस करते हैं, हमारे दिल दुखते हैं, हम थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं और उसके बाद अपना एक दोबारा से बैलेंस बना लेते हैं। आमतौर पे हम अपने रिलेशनशिप्स में 50-50% रिलेशनशिप्स को एंजॉय करते हैं, ऐसे ही है ना। और फिर इन बच्चों के साथ क्यों जाती, इनके साथ रिलेशनशिप में व्हाई यू वर लाइक अ डिक्टेटर। इनकी 1% भी स्पेस नहीं दिया आपने कि इनका भी कोई माइंडसेट पढ़ते, इनके साथ रिलेशनशिप बनाने में 50-50 पे चलते, तो शायद आपके हाथ भी कुछ आ जाता। ठीक है, तो एक चीज है कि आपने बैलेंस रखना है। फिर उसके बाद एप्लेक्सिया पे मैंने बात की, डायनामिक इंटेलिजेंस पे बात की। अब आ जाता है रेगुलेशन। बस मैं कोशिश करूंगी 5-7 मिनट ऊपर चली जाऊं 7 बजे से, क्योंकि अगर प्ले पे कोई बात आज रहेगी तो फिर मुझे याद रहेगा कि कुछ कंटिन्यू रखूं। डॉक्टर अजरा, अच्छा, तो ये जब आप रेगुलेशन पर बात करते हैं, तो रेगुलेशन जो है, अब आप जब एक बच्चे आपके पास कोई टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, वो मटरिंग कर रहे हैं, वो फ्लैपिंग कर रहे हैं, वो हाइपर एक्टिव है, वो क्राई कर रहा है, या उसको कोई आपको एंजाइटी फेस हो रही है, आपको एक चीज तो तय है कि वो रेगुलेटेड है। वो अब आप इसके साथ क्या काम कराएंगे। आप एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, बड़े बड़े काबिल डिग्रियों वाले ऑटिज्म में आके क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनको स्पीच का वाला प्रॉब्लम नहीं है कि उनको वो दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट्स। लेकिन ऑटिज्म में आकर वो 2-3 चीजें फेस करे। एक, उनसे रेगुलेट बच्चा नहीं होता। दूसरी बात, उन्हें पता नहीं है इनको हैंडल कैसे करना है। तीसरी बात, वो बिहेवियर और इन चीजों के लिए उसको लोगों के पास भेज देते हैं, और वो बच्चा जिसको थोड़ी सी हेल्प स्पीच वाले ने करनी थी वो भी गया। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने रेगुलेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स देने हैं। क्योंकि अगर सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप कितने रेगुलेटेड है। अगर आप रेगुलेटेड है, आप पैनिक नहीं हो रहे, आप काम डाउन है, तो फिर आप बच्चे को भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप को रेगुलेशन जो होती है ना, कि अपने आप को भी रेगुलेट करें, फिर आप बच्चे को भी रेगुलेट कर लेंगे। रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी, हम इस पे किसी दिन अलग टॉपिक रख लेंगे, बहुत एडवांस टॉपिक है। हम उनकी सेंसरी टेक्निक्स यूज करते हैं, हम इन बच्चों को काम डाउन स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, ओटी की एक्टिविटीज यूज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं।
इमोशनल फंक्शनिंग मैंने अभी डिस्कस की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्ले कनेक्शन। प्ले कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी सेटबैक्स, किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए, एंड वी शुड नॉट स्टॉप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। हाँ जी, प्ले पे मैं 2-4 बातें बताना चाहूंगी। वो ये कि मैं खुद भी कोई बहुत अच्छी कोई प्ले थेरेपिस्ट या वो नहीं हूँ, इसलिए। और जब मैं लोगों को हेल्प ऑटिज्म पाकिस्तान प्रोजेक्ट में लाइक ट्रेनिंग्स देने जा रही थी और बहुत सारे लोगों को पढ़ाती थी, तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले, बेस्ट थेरेपिस्ट जो मेरे थे, जो प्ले से वो ना सिर्फ घबराते थे, शाय थे, बल्कि उनका एक कॉमन कमेंट था कि लाइक मैं प्ले कर नहीं सकती, या लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं प्ले करूंगी तो वो फन नहीं होगा, या फिर ये कि जब मैं बच्चे के साथ प्ले करूंगी तो उसको इतनी फिक्र है और इतनी एंजाइटी है कि इंगेज कैसे होना है, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज है कि मुझे इंगेज होते मुझे या बच्चे को नजर आना चाहिए। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लाइक खुद से ज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसी मतलब एक सिंपल रूल याद रखें कि आप हमेशा नेचुरल रहे। आप आप सिर्फ वो करें जो आप करना चाहते हैं। आप लाइक सबसे पहले तो खुद एंजॉय करें। अगर आप एंजॉय कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी कर रहा होगा। और वो जो चीजें आपके ज़हन में है ना कि आपकी बच्चे की एंगेजमेंट नजर आनी चाहिए, डैम केयर नजर आनी चाहिए। आप बस फोकस करें कि आप जो कर रहे हैं, कुछ चीजें हमें नजर नहीं भी आती और बच्चे उस पर राजी वगैरह होते हैं। आप बेसिकली उस रियल नेचर एनवायरनमेंट में बहुत नेचुरल तरीके से, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हर शख्स को डिफरेंट डिफरेंट बनाया है। आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, कोई ज्यादा वोकल होता है कोई नहीं होता, तो आप वही करें जो आपको आता है और उसको खुशी से करें। और अगर आप इंजॉय करें तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी करेगा। लेकिन आप जब उसके साथ प्ले कर रहे हो तो ह्यूमैनिटी की सेंस को जरूर बीच में लेकर आए। आप बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखें कि आप एक्सपेरिमेंट से ना डरें, आप मेसी होने से ना डरें। अगर एक बच्चा एक पिक्चर में कलर कर रहा है या आप उसका प्ले कर रहे हैं और वो लाइन से बाहर उसका कलर निकल जाता है, व्हाई आर यू वरीड? क्या हो जाता है अगर कलर उसका पिक्चर से बाहर निकल जाता है? क्या हो जाता है कि आप एक छोटे बच्चे को तो अलाउ कर देती हैं कि उसके साथ प्ले करें, तो वो चीजों को मिस कर रहे हैं। नॉर्मल बच्चे भी चीजों को मिस करें, इन बच्चों के लिए इतना ज्यादा सिवियर सिस्टम क्यों है? जस्ट डू डू एंड डू, ये नहीं तो ये, गो गो गो, ये नहीं होगा। और आप उसको पहली दफा में ये मैसेज दे देते हैं कि यू दिस इज नॉट राइट, और बार बार प्रॉम्प्ट करके उसको एग्जैक्ट उसकी तरफ लाती है, परफेक्शन की तरफ। अगर हमें कोई बार बार हमारी गलती बताएगा तो हम क्या महसूस करते हैं? हमारी तो इंस्पिरेशन ही हमारा रोल मॉडल है। हमने क्या, हमारा दिल नहीं टूट जाता? हमारे बच्चे, नॉर्मल बच्चे देखे किस कदर हसास है। एक बार कह के तो देखें, आपने अच्छा इतना परफॉर्म नहीं किया, वो दूसरी बार आपके साथ नहीं बैठेगी। उन्हें वो टीचर्स नहीं अच्छे लगते जो आपकी गलतियां बताएं, आपको शुरू में रॉन्ग बता दे। तो थोड़ा सा हमने प्ले करते हुए बहुत नेचुरल रहना है। दूसरी बात ये कि अपने एक्सपेरिमेंट करने हैं अपनी जर्नी को फियरलेसली। आपने लाइक मिस्टेक्स होती हैं, होने दें, और वो मिस्टेक्स आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा लाइक जरूरी है। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि देखें, प्ले की जो आई वुड सजेस्ट एवरी पर्सन, बल्कि मैं इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम, आज तो टाइम खत्म हो गया, आई वुड लव टू शेयर द प्ले थेरेपी लाइक डिफरेंट स्टेजेस। आप सॉलिटरी प्ले, आपका स्पेक्टेटर प्ले, आपका कोऑपरेटिव प्ले, आपका सोशल प्ले, ये सब कैसे हमने कैसे लेके चल रहे हैं? एक्चुअली कनेक्ट हमने प्ले से कर रहे हैं, एज अप्रोप्रिएट प्ले से। ये नहीं कि 10 साल के बच्चे को 2 साल का प्ले करें और 10 साल के बच्चे को आप छोटे बेबी की तरह ट्रीट करें। हर एज की बातें फर्क है, डील करने का तरीका फर्क है, प्ले फर्क है। तो आपने एज अप्रोप्रिएटली करना है, उनके साथ रिलेट और उनके साथ कनेक्ट करना है। और आप देखिए, हम छोटे होते से बच्चों को सॉलिटरी प्ले नहीं करने देते। कभी देखा है बच्चे बैठे हो सोफों पर, बेड पर, ब्लॉक से छोटे छोटे बच्चे खेले, हम साथ जाके बैठ जाते हैं। हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमारे से इस वक्त रिस्पॉन्ड करें, बस हम साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ हम ऐसे करने से भी डरते हैं।
बस एक सिस्टम में रहते हैं। अगर हमने कोऑपरेटिव प्ले करना है तो भी हमें ये होता है कि एक चीज डिफाइन कर लिए, पीस ऑफ पजल बनाना है, तो बस अब ऐसे करना है, इसकी बारी है और मेरी बारी है, इसकी बारी है मेरी बारी है। हम उसको अलाउ ही नहीं करते उसकी लाइफ में कि वो थोड़ा सा लाइक नेचुरल लाइफ की तरफ आए, और शुरू से ही हमने उसको एक उसमें चल रहे होते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, जिसमें हमने ऐसे वेज फाइंड आउट करने हैं जिसमें बच्चा जो है एक सोशल प्ले की तरफ आए, उसकी अपॉर्चुनिटीज ऐसी, इससे लॉन्ग टर्म सक्सेस हमारे हाथ आती है। हमारा कोई क्विक फिक्स हमें नहीं करना चाहिए, हमें रियलिटी में बैलेंस स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स, जरूरी नहीं है कि हम उसको 25 घंटे 5 घंटे 2 घंटे, एक अच्छी मूवमेंट, एक अच्छा लम्हा जिसमें हमने उसके साथ एक विनिंग गेम, विनिंग मूवमेंट की है, वो भी बहुत है। और ये जो लाइक बहुत सारे कंसल्टेशंस और लोग हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन प्ले थेरेपी आप कहेंगे तो मैं आई वुड लाइक ट्रेन लाइक अरेंज अ लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू, एंड उसमें आप लोगों को थोड़ी आसानी भी हो जाएगी और आप लोग घर बैठे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस ये सोचे लाइफ इज अ प्ले रूम एक्चुअली, और उसमें हम सब ने ना उसके साथ ऐसे चल रहे हैं कि हमने अपना अपना पार्ट प्ले करना है और बहुत अच्छे तरीके से चलना है, और उसमें अपनी चेंज बनानी है और इन बच्चों के सेंसरी मोटर के साथ भी आगे करना है। नेक्स्ट स्लाइड। बैलेंस आपको मैंने अभी बताया, नेक्स्ट ये भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड, ये भी थोड़ा सा बता दिया है कि जरा, ये भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। सो रहता तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका टाइम 7 बजे तक था और मैंने कोशिश करके 7 बजे ही खत्म करना था। कुछ चीजें मैंने स्किप कर दी हैं, लेकिन बहुत फ्रेंकली स्पीकिंग नादिया, मैंने लेक्चर नहीं तैयार किया। ये टोटली लाइक हमारे तो कोई लेक्चर है, आई डोंट नो मैं आपकी म्यार पे पूरी उतरती भी हूँ या नहीं, लेकिन आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू लाइक। नहीं, आप बोल रही तो हमारा दिल चाह रहा है कि हम सुनते रहें, हमारा दिल चाह रहा है कि हम सुनते रहें। लेकिन टाइम की बस पाबंदी करना जरूरी है। So any questions if anybody want to?